السلام علیکم اینڈ ہائے دوستوں، میں ہوں ابیحا اور آپ دیکھ رہے ہیں نکی اچھالی۔ تو آج ہم آپ کو ایک نئی ریسرچ کے ساتھ ملے ہیں۔ تو آج ہم ایک نئی ریسرچ کے بارے میں آپ کو بتانے والے ہیں جو کہ نکی اچھالی میں ہوئی ہے۔ تو وہ ریسرچ ہے کہ رمضان ہوتا ہے تو اس میں آپ سحری کرتے ہیں اور افطاری بھی کرتے ہیں۔ تو سحری اور افطاری میں آپ کو سب سے زیادہ کھانے میں کیا پسند ہے؟ تو اس آپ یہ جان سکیں تو اس لیے میں بلانا چاہوں گی مہروش کو تاکہ وہ آپ کو بتائیں۔ لیکن مہروش سے پہلے میں بلانا چاہوں گی اپنے دو گیسٹ کو، تو ان کا تالیوں سے خوش آمدید کریں گے۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے دونوں گیسٹ آ گئے ہیں، ان کا نام نویرا اور ان کا نام زریز۔ تو اب ہم بلانا چاہیں گے مہروش کو تاکہ وہ آپ کو بتا سکے کہ ہم ہمارے نکی اچھالی میں کس نے کیا کھانا پسند کیا ہے۔ تھینک یو ابھی۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی، جیسے کہ ابھی نے آپ کو آلریڈی بتا دیا کہ ہم نے ایک ریسرچ کی ہے جس میں ہم نے سب سے جا کے پوچھا ہے کہ آپ کو سحری میں اور افطاری میں کیا کھانا پسند ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم شروع کرتے ہیں آنٹی ارم یعنی میری مما سے۔ تو انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ مجھے سحری میں نا سب سے زیادہ لسی پینا پسند ہے اور افطاری میں چاٹ۔ پھر آتے ہیں ہمارے دوسرے گھر کے ہمارے دادا ابو، جن کو سحری میں دہی اور روٹی کھانا پسند ہے اور افطاری میں پکوڑے۔ پھر ہماری دادو، جن کو سحری میں لسی پینا پسند ہے اور افطاری میں فروٹ چاٹ کھانا پسند ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں آپ کو بناتے کی طرف، جنہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ مجھے سحری میں سب سے زیادہ دہی پراٹھا اور افطاری میں دہی بھلے پسند ہے۔ پھر ہمارے چاچی اجاز، جن کو سحری میں روٹی اور افطاری میں فروٹ چاٹ پسند ہے۔ پھر میرا کزن، ہم سب کا کزن حماد، جس کو سیم سحری میں روٹی اور دہی اور افطاری میں روح افزا بہت پسند ہے۔ پھر میرا بھائی عمیر، اس کو لسی بہت زیادہ پسند ہے سحری میں اور روح افزا افطاری میں۔ ویسے وہ سحری کرتا تو نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کو زیادہ لسی پسند ہے۔ پھر زریز، ہمارا مہمان، ہمارا گیسٹ، اس کو سحری میں لسی پینا بہت پسند ہے اور افطاری میں فروٹ چاٹ۔ پھر ہماری پیاری اینکر کی مما آنٹی رفت، جن کو سحری میں کباب کھانا بہت پسند ہے اور افطاری میں فروٹ چاٹ ایز آلویز۔ پھر آتے ہیں ہماری پیاری اینکر کے بابا، جن کو سحری میں پراٹھا کھانا بہت زیادہ پسند ہے اور افطاری میں فروٹ چاٹ۔ پھر ہمارے مینٹور چاچو ساجد، ان کو سحری میں دہی اور نان اور افطاری میں پکوڑے کھانا پسند ہے۔ پھر ہمارے گیسٹ کی مما آنٹی سمینہ، ان کو سیم چیز پسند ہے۔ آنٹی سمینہ کو کھانے میں نان اور دہی پسند ہے اور افطاری میں چاٹ۔ پھر آتی ہے پھوپھو رابعہ، جو نکی اچھالی میں تو نہیں ہے لیکن وہ آتی ہیں۔ ان کو سحری میں بہت زیادہ پینا لسی پسند ہے اور افطاری میں جلیبیاں۔ پھر آتی ہے آنٹی روبینہ، جن کو سحری میں دہی اور روٹی اور افطاری میں فروٹ چاٹ۔ ہماری پیاری اینکر ابیحا، جن کو سحری میں لسی اور افطاری میں فاسٹ فوڈ کھانا پسند ہے، جو کہ ایک بری بات ہے۔ پھر مجھے سحری میں لسی پینا بہت زیادہ پسند ہے اور افطاری میں مجھے کچوریاں کھانا بہت پسند ہے۔ اب ہم اپنے ان دونوں گیسٹ سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کیا پسند ہے۔ تو زریز، آپ بتائیے آپ کو سحری میں کیا پینا پسند ہے، کھانا پینا؟ اور نویرا، جو ہماری سیکنڈ گیسٹ ہے، مجھے کچوریاں اور نگیٹس۔ آئی تھنک تو سحری میں آپ نے اس میں مجھے لسی پسند ہے۔
तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा कि आज हमने ये रिसर्च की और मारोश ने आपको बताया कि सबको क्या अच्छा लगता है, और मुझे उम्मीद है आपको मेरे दोनों गेस्ट से मिलकर बहुत अच्छा लगा होगा। लेकिन मैं एक पॉइंट बताना चाहूँगी कि मारोश ने कहा कि अभी यहाँ फास्ट फूड और तारीफ पसंद है, लेकिन कचौरियाँ भी फास्ट फूड में आती हैं, नहीं? फास्ट फूड होते हैं बर्गर, पिज्जा, फ्राइज। मतलब वो भी हेल्थी, मतलब वो भी होते हैं अच्छी। अब हम बुलाने लगे हैं अपने मेंटोर साजिद अब्बास, तो भरपूर तालियों से उनको बुलाया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। बैठो बैठो बैठो। ये ले, बैठो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अम्मी मेरी तरफ से आप। सो बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत ज़्यादा वेलकम। तो आज आपको फिर से हमने बुलाया है अपने शो में। तो आज हमने एक नई रिसर्च की है जो कि है रमज़ान पे, कि सबको सहरी और अफ्तारी में खाने में क्या पसंद है। तो अभी हमने सारी रिसर्च करके बताई है, तो अब आप हमें बताएं उसके बारे में और कुछ नई चीज़ें। तो सबसे पहले तो आपने बहुत अच्छी रिसर्च की है और अच्छा खासा आपने इस पे टाइम लगाया। तो मैंने इसमें आपसे करनी है 3 बात। पहली बात तो ये कि जो रिसर्च है ना वो हम करते क्यों। दूसरी बात ये है कि इस रिसर्च से हमें पता क्या चला, हम इससे क्या इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं। और तीसरी बात कि क्या रमज़ान में वाकई यही रिसर्च होनी चाहिए या कोई इससे बेहतर भी चीज़ हो सकती है। रिसर्च हम करते इसलिए हैं कि अभी आपको पता है कि रमज़ान आने लगा है, कल हमारा माशाल्लाह से पहला रोज़ा है। तो आपको अब अभी से पता चल गया है कि लोग क्या खाते हैं सहरी में और क्या नहीं खाते। अगर आप ये रिसर्च ना करते तो आपको पता ही ना हो। अब चूँकि हमने रिसर्च की है और हमारे पास ये रिजल्ट सामने आए हैं, इसमें ज़्यादातर जो है लोगों को सहरी में लस्सी, रोटी, दही और ये चीज़ें पसंद है ज़्यादातर। अफ्तारी में ज़्यादातर लोगों को चाट और पकौड़े पसंद है, जो आपकी रिसर्च से हमें पता चला। तो ये अब इस पे ये बात हो सकती है कि यार ये जो चीज़ें लोग सहरी और अफ्तारी में खाते हैं, इनमें से अच्छी कौन सी हैं और बुरी कौन सी ऐसी हैं जो हमें जारी रखनी चाहिए, कौन सी ऐसी हैं जो हमें रोक देनी चाहिए। अब आप लोग बताओ कि मसलन लस्सी जो है मेरे हिसाब से अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए। दही, रोटी, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो अब इसमें किसी बच्चे ने ये भी कहा कि हमें अफ्तारी के वक्त हमें क्या नाम है, जंक फूड। अब नाम ही जंक है। जंक का क्या मतलब होता है? बुरा, गंदी चीज़, जो चीज़ आप फेंक देते हैं उसको जंक फूड कहा जाता है। ये अब फास्ट फूड, ठीक है। तो फास्ट फूड को जंक फूड कहा जाता है कि ऐसी चीज़ है जो आपको जंक बना देगा, तो आपकी सेहत के लिए वो बहुत ही बुरी चीज़। सारा दिन आप भूखे रहते हो और यकदम आप अपने पेट में डाल दो फास्ट फूड, तो क्या होगा? उल्टा आपका पेट आपका नुकसान होगा। तो जंक फूड सहरी में, इफ्तारी में, आपकी ज़िंदगी में पेप्सी जो है, बर्गर और जनाब पिज़्ज़े, ये चीज़ें बहुत बुरी चीज़ें, इनको आप अपनी ज़िंदगी से निकाल दो, ठीक है। ज़िंदगी से निकाल दो, छोड़ो मत। और उसके बाद जो बाकी चीज़ें जो घर में बनती हैं, सादा सा फार्मूला ये है कि हर वो चीज़ अच्छी है जो अल्लाह ताला ने बनाई है। मसलन दूध है जो हमें, अंडा है या जनाब शहद है, ये सारी चीज़ें जो अल्लाह ताला ने ज़मीन पे हमें डायरेक्ट मिलती हैं, ये अच्छी चीज़ें। लस्सी है दूध से बनती है, रोटी है वो गंदम से बनती है, तो ये सारी चीज़ अच्छी। लेकिन कुछ चीज़ ऐसी जो आप शॉप से या कहीं और से परचेज करके लाते हो, जो तेल में बहुत मैन्युफैक्चर करके वो बनाते हैं, तो वो चीज़ें अच्छी नहीं है आप लोगों के लिए, तो उनसे परहेज़ करें, ठीक है। और फ्रूट चाट है, फ्रूट को मिक्स करके आप लोग खाते हैं, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है, रिफ्रेशिंग है और हेल्दी है। इसी तरह पकोड़े जो है वो भी कोई अच्छी चीज़ नहीं है, तली हुई चीज़ है, लेकिन बहरहाल जंक फूड से वो भी बेहतर है। कचौरियाँ भी तली होती है, लेकिन फिर भी वो सब्जी होती है, आलू होता है, इस तरह करके ना, ठीक है। तो पहले दूसरा पॉइंट तो ये था कि रिसर्च हम करते क्यों हैं? रिसर्च हम जानने के लिए, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए। आज हमें क्या रिसर्च से क्या प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई कि हम लोग सहरी में और अफ्तारी में बहुत सारी अनहेल्दी चीज़ें खा रहे हैं। अब जब एक चीज़ आइडेंटिफाई होगी तो दूसरा स्टेप क्या होता है? उसको ठीक करना। कि आप लोग अपने घरों में जाएं और कोशिश करें कि तली हुई चीज़ें कम से कम और घर में बनाई हुई चीज़ें या जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें डायरेक्ट चीज़ें मिलती हैं वो इस्तेमाल।
तीसरा पॉइंट जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो रमज़ान का महीना है ना, वो बुनियादी तौर पे खाने पीने का महीना नहीं है। आप लोगों ने हमने जो रिसर्च की है कि लगता है ऐसे है कि बस कोई ऐसा महीना आ गया जिसमें मज़े हो गया, पकौड़े चलेंगे, लस्सी चलेगी, जनाब बर्गर चलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। रमज़ान का जो असल महीना है उसके बारे में अब यहीं से मैं आपको दूसरा आइडिया, अगली रिसर्च आपकी इस बारे में होनी चाहिए कि रमज़ान के महीने में हम लोगों को क्या करना है। ठीक है, तो रमजान एक महीना है जिसमें लोग सोचते हैं कि अगर हमें खाना होता है, हमें पूरे दिन भूखा रहना होता है और हमें खाना है, लेकिन अक्सर लोग यूँ करते हैं कि वो उस शहरी के वक्त में शहरी करके सो जाते हैं और अफ्तारी के वक्त उठते हैं। बीच में थोड़ा सा टाइम जरा कोई अपने काम के लिए उठ जाते हैं। कोई तिलावत नहीं, कोई कुरान नहीं पढ़ रहा, कोई नमाज नहीं पढ़ रहा, कोई नेकी का काम। क्यों? ये रमजान सिर्फ और सिर्फ आपके भूखे रहने के लिए नहीं होता। फिर आपके रमजान, आपके रोजे रखने का क्या फायदा जब आपने नमाज नहीं पढ़ी, आपने कुरान की तिलावत नहीं की। रमजान में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप रोजा रखें और साथ आप नमाज भी पढ़ें, वो भी 5 वक्त की, और तिलावत भी करें। और रमजान में बहुत अच्छी बात है कि आप तहज्जुद भी पढ़ें। वेरी गुड। आपका क्या है? अभियान ने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो रमजान है ना, उसमें सिर्फ हमें खाने पीने का सब्र नहीं करना चाहिए, हमें अपनी आंखों का भी ख्याल रखना चाहिए ना। हमें अपनी आंखों से ऐसी कोई चीज देखनी चाहिए जिससे हमसे अल्लाह ताला नाराज हो, हमारा रोजा टूटे। कानों से भी कुछ ऐसा नहीं सुनना चाहिए और पाँव से भी किसी ऐसी जगह पे चल के नहीं जाना चाहिए जैसे लोग अक्सर गाने वगैरह सुनते हैं और शादियों में चल जाते हैं, गाने वगैरह बजाते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों का भी सब्र करना चाहिए। वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है। मतलब आपने दोनों ने जो बात की इसमें एक चीज़ आप ऐड कर रहे हैं कि बुनियादी तौर पर रमज़ान जो महीना है वो इबादत का, यानी कोई भी इबादत, जिस तरह मैंने आपको कहा कि इबादत का महीना है, इसमें आप इबादत करें, इस्तग़फ़ार करें, अपने गुनाहों की माफ़ी चाहें, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसार का और कुर्बानी का महीना है। आप जब भूखे रहते हैं ना पूरा दिन, तो उससे आपको एहसास होता है कि दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं कि जिनको खाने नहीं नसीब होता। आपको भूखे रहने से वो तकलीफ़ का पता चलता है, उन लोगों की तकलीफ़ का कि जो पेट भर के खाना भी नहीं खा सकते। फिर आप इस महीने में इसार का मुजाहरा करते हैं, आप कुर्बानी देते हैं अपने इर्द गिर्द के लोगों से। तो अगर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मुश्किल में हैं, जिनको मसाइल का है, उनकी मदद करते हैं फाइनेंशियली, ताकि वो लोग भी पेट भर के खा सकें। अफ्तारियों का बंदोबस्त होता है आप, और ये दावतें जो है ना, वो उन दावतें बस सारा कुछ बना लिया और ख़ुद खा पी लिया, उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप बनाएं और उन लोगों में बांटें जिनको कोई ये सहूलत नहीं है। तो बेसिकली इबादत का, इस्तग़फ़ार का, इसार का, कुर्बानी का, अपने आप को हर बुरे काम से रोकने का, ये रमज़ान के जो है वो ये है। ठीक है, तो अब मुझे अब ये बताएं कि आपके ये जो क्यूट गेस्ट हैं जुरेज और ज़ुहैरा, तो आप लोग ये बताएं कि आपने पहले कभी रोज़ा रखा? आपने रखा था? पूरे रोज़ा रखा आपने? और वो नहीं, आपने जो रोज़ा रखा है वो दिन में कितने रोज़े थे? 70 रोज़े खा ही जा रहे हैं। तो बहरहाल बहुत अच्छी एफर्ट है आप लोगों की। अब नेक्स्ट जो हम इसमें रिसर्च हमें करनी है वो ये है कि रमज़ान का मकसद क्या है। आज दोस्तों को ये भी नहीं पता कि अगर रमज़ान है तो मतलब अल्लाह ताला ने यही क्यों कहा कि हम रमज़ान में रोज़े रखें। अल्लाह ताला ये भी कह सकते थे कि हम मुहर्रम में रोज़े रख लें, सफ़र में रोज़े रख लें, लेकिन क्यों अल्लाह ताला ने कहा रमज़ान में? इसका जो सबसे बड़ी वजह है ना वो ये है कि रमज़ान में कुरान आया था। That's why अल्लाह ताला ने हमें कहा कि आप रोज़े रखें और रमज़ान में रखें, क्योंकि रमज़ान अल्लाह ताला का एक बहुत ज़्यादा मुक़द्दस महीना है। हमें अपने ना सिर्फ मतलब खाने से रुकने का रोज़ा नहीं रखना चाहिए हमें, और ना ही सिर्फ इबादत करने के लिए, ठीक है, सोने वगैरह। आपको मतलब अपने कान, आँख और इन सब का रोज़ा रखना चाहिए कि आप इस बुरी चीज़ से परहेज करना है, इस बुरी चीज़ से परहेज करना है। और मुझे लगता है कि जो हम सो जाते हैं ना, ये भी बुरी चीज़ बनता है, क्योंकि आपकी ना इबादत हो रही होती ना कुछ हो रहता है। आप कुछ चाहिए कि आप मतलब पूरे साल इबादत करें, लेकिन अब
ये जो एक महीना होता है ना रमजान का, इसमें मैं कहती हूँ लाजमी ही करें। इसमें एक पॉइंट ऐड करें कि जो भी काम आप रमजान में करते हैं ना उसका अजर बहुत ज्यादा होता है। यानी नॉर्मल अगर आपने नॉर्मल दिनों में एक नमाज पढ़ी है वो उसका एक ही अजर है, लेकिन जब आप रमजान में पढ़ते हो उसका 70 गुना ज्यादा है। बिल्कुल। ठीक है, आप तौबा करते हो, कोई भी अच्छा काम आप जो करते हो नॉर्मल दिनों से रमजान के मुकद्दस महीने में जब भी आप कोई काम करोगे उसका ही गुना ज्यादा आपको उसका सवाब है। और आप जिससे बहुत सारे गुनाह करते हैं, तो आप रमजान में ये नहीं कह सकते कि हमसे ये शैतान ने करवाए, वो आपने खुद किए, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान में कि मैंने शैतान को रमजानों के महीने में बंद करके रखा है। रमजान के महीने में वैसे भी लोगों में ये होता है कि वो शैतान के बिल्कुल रहते हैं ना काबू में, और फिर उनकी जो अपनी अंदर की होती है नफ्स होता है, तो वही गंदे कामों की तरफ चला जाता है। तो इस वजह से इंसान गंदे काम करता है। लेकिन अगर मैं बताऊँ कि नफ्स अगर आपका अच्छी राह पे है तो आप अच्छे, वरना अगर शैतान है तो फिर तो आप शैतान आपको गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन अगर आप खुद पे सब्र डालें तो शैतान आपको कभी गुमराह नहीं कर सकता। शैतान सिर्फ वसवसे डालता है, काम तो हम खुद करते हैं। शैतान हमारा हाथ पकड़ के तो नहीं लेकर जाता कि हाँ अभी करो तुम। बिल्कुल बिल्कुल सही है। Very nice. तो नाज़रीन, जैसे कि आपको बताया, उन्हें कुछ चीज़ें बताई, उसके बाद मारोश ने चीज़ें बताई, मैंने आपको चीज़ें बताई, तो क्या अब हम इन छोटे छोटे लोग गेस्ट से पूछ सकते हैं कि आप भी हमें रमजान के बारे में कोई चीज़ बताना चाहते हैं? पहले आप जुरैज, आपका क्या ख्याल है रमजान के बारे में? रमजान में आप क्या करोगे? और अफ्तारी करूंगा। शाबाश। आप? मैं पूरे रोजे रखूंगी और इंशाल्लाह मैं पूरे रोजे रखूंगी और अफ्तारी भी करूंगी, सहरी भी करूंगी और नमाजें भी पढ़ूंगी, कुरान भी पढ़ूंगी, सब्र करूंगी और अपना होमवर्क भी करूंगी। तो जैसे कि नाज़रीन, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की रिसर्च की वीडियो में आपको बहुत मजा आया होगा। तो ये आप लोगों की एफर्ट के रिकॉग्निशन के तौर पे आप सबको आप भी आजे आजे आप सबको इस ये ट्रॉफी मुबारक हो। बहुत अच्छी रिसर्च किया और उसको ऐसा भी जारी रखें। बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतनी आगे बताना। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी रिसर्च अच्छे से बढ़ाते जाएंगे, और जैसे कि आपने देखा हमारा लेवल आहिस्ता आहिस्ता ऊपर होता है। तो इंशाल्लाह अब हम आपको मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रिसर्च के साथ या फिर नए चैलेंज के साथ। तो अल्लाह हाफिज, और निकी उछाली के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और आगे आगे लोगों तक पहुंचाएं। और हम सब की तरफ से बहुत बहुत रमजान मुबारक।